Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम सर। Alaikum assalam. Okay, so welcome to the fourth lecture of Signals and Systems. In our last lecture, we introduced the concept of system characterization based on certain properties. And in our last lecture, we discussed in detail two properties based on which you can classify systems. And those properties were based on memory. So whether system is characterized as some system with memory or system without memory, or we can call it memoryless system. And memoryless systems are also known as static system, and system with memory are also known as dynamic systems. Then another property that we discussed is invertibility. So based on invertibility, our system can be invertible or it can be non-invertible. And during that discussion, we also introduced the concept of inverse system as well as identity system. So the idea is if system is invertible, then it must have a corresponding inverse system. And other term that I introduced was identity system. So when you connect an invertible system with its corresponding inverse system, the output will be the same as input. And whenever you have a system for which output is the same as input, we call that system as identity system. So moving forward, let's introduce the third property for system characterization, and that is related to causality. So based on causality, we can characterize our system as causal systems or non-causal systems. So on what basis we will say that system is causal or non-causal? So let me write down the statement for causal systems. So a system is causal if the output at any time depends on the present or past input, or you can also say or both present and past. So causal systems are those systems whose output at any given time should only depend on what is the present input or what is the past input, or it can be dependent on both past and present. Which means you can also define causal system in another way, and that is you can say that causal systems are those systems whose output should be independent of future inputs. So this is again this is another way to define causal system. So let me say
whose output should be independent of the future inputs. So once you have this definition of causal system, so it is very easy for you to now define what is non-causal system. So non-causal system would be that system whose output should depend on future inputs. So non-causal system, their output may depend on present input, they may depend on past, but they must depend on future inputs. So as soon as future input comes into the picture, it means you are dealing with a non-causal system. Now let's consider some example to better understand this concept of causality. So if you are given a system whose input-output relationship is given to you, so let's say y of t is equal to x of t. So ये कौन सा system हो जाएगा? Causality के बेस पे कौन सा system हो जाएगा? Causal system. Yes, this is causal system. Let's consider another system. Y of t is equal to x of t plus x of t minus 1. ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा? causal. ये भी causal हो जाएगा. और एक और सिस्टम देखते हैं. लेट्स से डिस्क्रीट टाइम में एग्जांपल हम ले लेते हैं. y of n is equal to x of n plus 1. ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा? Non-causal. नॉन-कॉजल हो जाएगा. और एक और एग्जांपल कर लेते हैं. y of n is equal to x of n minus 1 plus x of n plus x of n plus 1. ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा? Non-causal. ये भी Non-causal. नॉन-कॉजल हो जाएगा. ठीक. ओके. So most physical realizable system in this world are causal system. Okay. All physical systems that you will come across, they are causal system. So we also use some alternate terminology for causal system and non-causal system. So let me also introduce that one. So causal systems, they can also be called as non-anticipative system. Non-anticipative systems. And non-causal systems, they can be called as anticipative systems. And you can relate this terminology to because causal system, they don't know what will be the future input, because their behavior is dependent only on past and present. So they don't anticipate what is going to be the future value of the input. So that is why they are known as non-anticipative system. And on the other hand, non-causal system, because their behavior is dependent on future values. So it means these are systems which can anticipate what is going to be the future input. So that's why they are
called as anticipative system. Okay, let's also introduce let me again, these were very simple examples, so make sure that you get the whole idea. So let's consider a system whose input and output relationship is given to you like this. ये किस किस्म का सिस्टम है जी? सर नॉन कॉजल। नॉन कॉजल। और नॉन कॉजल किस वजह से है? सर ये फ्यूचर एस्टिमेशन को ओपन कर लेंगे तो जो टर्म आएंगे उसको फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करता है। कब करता है? किस किस में करेगा? सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, लेट मी करेक्ट दिस। यहाँ पे के जी, कब करेगा? इसमें फ्यूचर वैल्यूज कब आएंगी? जब k की वैल्यू माइनस m पुट करेंगे तो माइनस m। यस यस, तो k की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यूज आएंगी। सो योर करंट output start depending on future, so this is a non-causal system. Okay, let's excuse me, we also use this term of anti-causal system. Any idea any anti-causal systems किस कौन से systems को हम कह सकते हैं? सिर्फ फ्यूचर इनपुट्स पर जिसका आउटपुट डिपेंड करे, सिर्फ फ्यूचर। Okay, so output depends only on future inputs. So output depends only on future inputs, then that system is anti-causal system. So all anti-causal systems are non-causal systems. But the reverse statement is not true. All anti-causal systems are non-causal, but not all non-causal systems are anti-causal. This is what I meant to say. Okay. Okay, just to finish this topic, एक simple example है, but let's see कि अगर आपके पास एक सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आपके सामने इस तरह, ये कॉजल है या नॉन कॉजल है? सर ये काजल है। सर ये नॉन कॉजल है। Okay, so it means now confusion. जी, कॉजल और नॉन कॉजल? नॉन कॉजल। सर जी नॉन कॉजल है, जब n की वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव पुट करेंगे ना तो उससे क्या होगा? आउटपुट तो नेगेटिव आएगा, लेकिन इनपुट जो है वो तो फ्यूचर वैल्यू पुट की। जी, किसको थोड़ा सा कोई और इस पे कमेंट करे जी। मैं और मेनाड जी, कॉजल और नॉन कॉजल? कॉजल है। नॉन कॉजल है सर। नॉन कॉजल है, क्यों? कॉजल है सर, कॉजल। चलें, जो नॉन कॉजल कह रहे हैं किस वजह से नॉन कॉजल है?
जी, नॉन कॉजल क्यों है? चले, नेगेटिव वैल्यू ऑफ n के लिए। नेगेटिव मतलब क्या होगा? मतलब नॉन कॉजल की जो हमने डेफिनेशन की है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि ये नॉन कॉजल है या कॉजल है? सर जी नेगेटिव देखना, वैल्यू के लिए भी वो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करेगा फिर। क्या होगा? दोबारा रिपीट करें। सर लेट सपोज अगर हम n नेगेटिव भी ले ले तो फिर भी वो प्रेजेंट वैल्यू ही होगा। अगर हम n को नेगेटिव ले लें तो उससे क्या हो जाएगा? वही इनपुट रह जाएगा, मतलब कॉजल सिस्टम है सर। आप कह रहे हैं कि कॉजल है। अच्छा, आप इसकी बात करें। चलिए, ये जो नॉन कॉजल कह रहे हैं वो किस तरह कह रहे हैं जी? किस बेस पे आप कह रहे हैं कि ये नॉन कॉजल है जी? सर जी n की जो प्रेजेंट वैल्यू इस पे डिपेंड करता है। अगर n की वैल्यू हम चेंज करते हैं तो वो माइनस n की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मतलब फ्यूचर वैल्यू नहीं, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ये प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है। यस। सिस्टम का आउटपुट एट एनी गिवन टाइम कौन से इनपुट पर डिपेंड करता है? सर इसमें हम तीन इनपुट दे सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम इन की जगह Yes. n+1 ले ले तो उधर फिर n+1 ले तो ये तो फ्यूचर ले लिया, हमने ले लिया है, तो आउटपुट पे हमारे पास -n+1 आएगा। तो ये तो फिर भी n-1 है तो ये पास्ट वैल्यू ये देता है। हम पुट सर करते हैं फ्यूचर लेकिन आउटपुट में पास्ट देता है। जी जी, कोई और कमेंट करे जी? सर यहाँ पे अगर हम n की जगह -2 या -1 पुट कर देते हैं तो वहाँ पे हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आगे आ जाती है। यस, आप कह रही हैं कि n को मैं क्या पुट कर दूं? -2 पुट कर दूं? ओके, -2 या माइनस में कोई भी put कर दीजिए। तो आपके पास y ऑफ -2 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसका क्या मतलब होगा? ये फ्यूचर वैल्यू पे सर डिपेंड कर रहा होगा। यस, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये नॉन कॉजल है। ओके, करेक्ट आंसर। ओके, I think most of the confusion regarding causal and non-causal system is clear. So let's move to the next property. So fourth property based on which हम system की characterization करेंगे इसको कहते हैं stability. एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर ये जो लास्ट एग्जांपल आपने भी नॉन कॉजल वाली करवाई है, इसमें अगर n को हम लोग पॉजिटिव लें, n को पॉजिटिव ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल n को हम ले लेते हैं +2। y ओके, तो इससे क्या होगा? तो y ऑफ +2 इज इक्वल टू x ऑफ -2। यस, फिर यस, ठीक है यहाँ तक। कंफ्यूजन कहाँ पे है सर ये वो फिर बता। प्रीवियस वैल्यू नहीं आ जाती? x ऑफ -2। यस, प्रीवियस हो गई, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो नॉन कॉजल में कंडीशन तो नहीं होती है। यस, तो क्या कंफ्यूजन कहाँ पे? बिल्कुल आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड कि आप किस आप कह रही हैं कि ये इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्या ये सिस्टम कॉजल हो जाएगा? आप ये कहना चाह रही हैं? नो सर, ये यानी कि प्रीवियस वैल्यू है, तो यानी कि नॉन कॉजल को हम लोगों ने ये डिफाइन किया कि हुज आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इनपुट्स। कहाँ पे लिखा हुआ है? आपने कहा था ना यानी कि कॉजल ये है कि हुज आउटपुट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्यूचर इनपुट्स है, तो नॉन कॉजल ये होगा कि हुज आउटपुट शुड बी डिपेंडेंट। यहाँ पे देखें, ये मेन फर्क जो मैंने यहाँ बताया था। अगर आप देखें एंटी कॉजल और नॉन कॉजल में क्या डिफरेंस है आपके ख्याल में? ये अगर आप फर्क आप मुझे बता दें तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटी कॉजल सिस्टम एंड नॉन कॉजल सिस्टम? सर आगे ये समझ ठीक हो गया? ये है कि जिसमें सिर्फ फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और नॉन कॉजल यानी कि फ्यूचर के अलावा भी। यस, पास भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसमें फ्यूचर आ गया तो वो क्या बन गया? नॉन कॉजल आ गया। ठीक है, ठीक है तो आपने जो एग्जांपल दी है कि हम n की वैल्यू, ये तो नहीं कि हम अपनी मर्जी से हम इस सिस्टम को, एक गिवन सिस्टम है और मैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको बस कॉजल सिस्टम बना दूं, या मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको नॉन कॉजल बना दूं। ये मेरी ख्वाहिश पे नहीं होगा, बल्कि मुझे इस सिस्टम की बिहेवियर को फॉर ऑल टाइम चेक करना पड़ेगा
कि सिस्टम का ओवरऑल टाइम क्या बिहेवियर है। सो इंक्लूडिंग जिस तरह मैंने जो किसी ने जब आंसर दिया तो उन्होंने इस हिसाब से किया कि जब n नेगेटिव ले लिया तो ये बिहेवियर हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि फ्यूचर आ गया तो मतलब है कि ये नॉन कॉजल बन गया। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव लेना चाहते हैं वो भी आप ले लें। अब इस केस में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके सिस्टम का जो आउटपुट है वो प्रीवियस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमने कह दिया था कि अगर सिस्टम का आउटपुट कभी भी फ्यूचर पे डिपेंड करना शुरू हो जाए तो बस वो नॉन कॉजल। क्लियर हो गया? Yes, sir. Thank you. Okay, welcome. Okay, stability. So we have two possibilities कि हमारा सिस्टम हम उसको कहेंगे कि ये स्टेबल सिस्टम है या नॉन स्टेबल या अनस्टेबल सिस्टम। Now what is the criteria based on which हम सिस्टम की कैरेक्टराइजेशन करेंगे? ठीक है, सो स्टेबिलिटी के लिए हम एक रूल डिफाइन कर लेते हैं और इस रूल को हम कहते हैं बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, which is sometimes abbreviated as BIBO. और ये क्राइटेरिया हम अप्लाई करते हैं कि अगर हमारा सिस्टम स्टेबल होगा तो उसको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा कि अगर हम एक सिस्टम को बाउंडेड इनपुट अप्लाई करें उसका सिस्टम का आउटपुट भी बाउंडेड आना चाहिए, और जिस सिस्टम के लिए हमने बाउंडेड इनपुट अप्लाई किया लेकिन आउटपुट बाउंडेड ना आए तो वो ऑटोमेटिकली कौन सा सिस्टम बन जाएगा? अनस्टेबल। नाउ बाउंडेड का वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर कि बाउंडेड का मतलब ये है कि आपने एक फाइनाइट इनपुट अप्लाई कर रहा है। आपका इनपुट का जो सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हैं वो एक उसका एम्पलीट्यूड फाइनाइट होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी से बाउंडेड का ये मतलब। सर बाउंडेड में इनपुट का मैग्नीट्यूड फाइनाइट होना चाहिए। यस। नाउ अगर हम क्राइटेरिया लेट्स से कि आपको एक सिस्टम गिवन है एंड यू नीड टू आंसर कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आप किस तरीके से सिस्टमेटिकली किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? अगर आप कहते हैं कि सिस्टम स्टेबल है तो हाउ यू विल प्रूव दिस स्टेटमेंट कि सिस्टम स्टेबल है? तो जो हमने क्राइटेरिया डिफाइन किया है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, इसका मतलब ये है कि मुझे एवरी पॉसिबल बाउंडेड इनपुट लेना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या सिस्टम का आउटपुट बाउंडेड आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर फॉर एवरी बाउंडेड इनपुट सिस्टम का आउटपुट बाउंडेड आ रहा है इसका मतलब है कि ये स्टेबल सिस्टम होगा। और अगर मैंने ये प्रूव करना है जस्टिफाई करना है कि ये सिस्टम अनस्टेबल है, आई जस्ट नीड टू फाइंड वन एग्जांपल। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी एग्जांपल आइडेंटिफाई करनी है कि जिसमें इनपुट बाउंडेड हो लेकिन सिस्टम का आउटपुट क्या हो जाए? अनबाउंडेड हो जाए। सो सिर्फ एक एग्जांपल अगर आपको ऐसी मिल जाए कि सिस्टम इनपुट इज बाउंडेड बट आउटपुट इज अनबाउंडेड तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट यू कीप इन योर माइंड कि अगर आपने एक सिस्टम को स्टेबल बनाना है या अनस्टेबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम एक 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं तो ये आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। So let's consider some examples.
ये जो मैंने एक एग्जांपल दी थी इस बार, अगर इस सिस्टम के बारे में हमने बताना है कि क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आपके ख्याल में क्या आंसर होगा इसका? सर पहले तो कोई बाउंडेड इनपुट के हमने से देंगे, उसके बाद फिर हम जज करेंगे। यस, तो आप बिल्कुल सही बता रही हैं, लेकिन आप इस एग्जांपल लेट से कि आपने मुझे बताना है कि स्टेबल है या नहीं। आपने इन अदर वर्ड्स कि आपका आंसर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें वेगनेस नहीं होनी चाहिए कि अगर ये होगा तो ये होगा। आप जो मैंने क्राइटेरिया बता दिया है, आप वो क्राइटेरिया अप्लाई करके आंसर यही होगा कि ये सिस्टम या तो स्टेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपके ख्याल में? सर ये स्टेबल है। ये स्टेबल है? तो किस बेस पे कह रहे हैं आप? सर इसमें जो भी वैल्यू तो ये फाइनाइट वैल्यू देगा, इनफिनिटी तक जा नहीं सकता। जी, कोई स्पेसिफिक रेंज है इसमें जो स्टेबल है सर। m अगर m इज इक्वल टू -1 और 2 हो जाए तो फिर अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाए, दोबारा कहें? लेट सपोज अगर m इज इक्वल टू 1 और -2 तो फिर अनस्टेबल हो जाता है। एम की बात कर रहे हैं आप कि एन की बात कर रहे हैं? एन की बात कर रहे हैं कि आप किस चीज की बात कर रहे कि सर m की, हैं? एम की, कैपिटल M यस, कैपिटल एम। आप क्या कह रहे हैं, क्या हो जाए? -1 और 2। -1 हो जाए? वो वैल्यू तो आप छेड़ नहीं सकते, वो तो इंटीग्रेशन से बाहर है। ये सर ये कह रहा है ये पिछला m जो है 2m के साथ, यहाँ पे Yes. m की जगह -1 ये 0 लेके आना चाहता है, नहीं, वो तो आप ले ही वो नहीं तो आ आप सकते नहीं हो। छेड़ सकते। यस यस यस, ये सर सही बता रहे हैं। ये तो आप, ये तो हमारे समेशन का वेरिएबल है ना। ये तो आप जिस रेंज में आपने सम करना है ना, m तो लेट से अगर आप m इक्वल टू 2 ले लें तो आप -2 से +2 के लिए रेंज में इसको आप सम करते रहेंगे। ठीक है, यस। क्या आंसर होगा जी इसका? स्टेबल। स्टेबल है। क्यों स्टेबल है जी? मतलब जो जो भी वैल्यू दो बाउंडेड वैल्यू दो बाउंडेड आउटपुट ही देगा सर। यस। पे नहीं जा सकता। अगर हम x इनपुट यहाँ पे कोई भी बाउंडेड नंबर डाल लें, कोई भी बाउंडेड सिग्नल अज्यूम कर लें, जब उसको हम सम करेंगे बिटवीन दिस फाइनाइट रेंज -m to +m, तो आउटपुट भी आपके पास बाउंडेड ही आएगा। So this is a stable system. Okay, now let's consider another example. जो एक्यूमुलेटर हमने एक सिस्टम काफी दफा यूज कर चुके हैं हम, बाकी प्रॉपर्टीज के हवाले से भी। अगर आप एक्यूमुलेटर का इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप देखें, सो एक्यूमुलेटर के बारे में आप क्या कहेंगे? स्टेबल है कि अनस्टेबल है? सर ये भी स्टेबल है। ये भी स्टेबल है। ये सही है जी। बाकी सर बाउंडेड दोगे तो बाउंडेड देगा ना सर। ये जो आप अनबाउंडेड मतलब इंफिनिटी की बात कर रहे हैं सर, तो अनबाउंडेड है सर। हाँ, नॉन बाउंडेड जी ये भी स्टेबल, स्टेबल है। अनस्टेबल है। क्यों? वाई? सर के की सर वैल्यू इसमें -∞ से स्टार्ट होता है, तो वो तो हमें मालूम नहीं होता, कोई भी ले सकता है, हमें तो उसकी फिक्स वैल्यू को पता नहीं है। फिक्स वैल्यू का पता है ना कि -∞ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर -∞ तो कुछ भी हो सकता है ना सर, ये तो हमें मालूम नहीं है कि क्या है ये तो बिल्कुल, इसके तो इसका बियॉन्ड मतलब भी जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं? मतलब -∞ तो इसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, मतलब जिस तरह हम नेगेटिव पे चले जाते हैं तो चले जाते रहेंगे। तो उसे तो क्या होगा? इनपुट बाउंडेड नहीं है, इनपुट बाउंडेड नहीं है सर। इनपुट बाउंडेड नहीं है? सर
आउटपुट बाउंडेड नहीं है, इनपुट अगर बाउंडेड भी है, इनपुट अगर बाउंडेड है, आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, अनबाउंडेड आ सकता है। अनबाउंडेड। इसका मतलब है कि ये सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। ओके, दीज आर सिंपल जो एग्जांपल्स हैं जिनका हम विदाउट गोइंग इनटू टू मच डेरिवेशन हम बता सकते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। जो मैं दूसरा आपको एक जनरलाइज्ड एक मेथड बता रहा था कि अगर हमने एक सिस्टम को स्टेबल डिक्लेयर करना है या एक सिस्टम को अनस्टेबल डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू प्रूव कि अगर एक सिस्टम स्टेबल है, it means we should be in a position to say कि for all bounded inputs इस सिस्टम का आउटपुट बाउंडेड होगा, क्योंकि हम Excuse me, इनपुट sir. पे अपनी मर्जी का तो कोई बाउंडेड इनपुट नहीं ले सकते ना। हमें जितने भी पॉसिबल बाउंडेड इनपुट्स हो सकते हैं उन सबको कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर जितने भी पॉसिबल बाउंडेड इनपुट्स हैं उन सब के लिए और सिस्टम का आउटपुट बाउंडेड आ रहा है, तब मैं उसको कहूंगा कि ये स्टेबल। ठीक हो गया। इसको मैं एक एग्जांपल से कर लेता हूँ, फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ लें। ठीक है, सो एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूँ। आपके पास दो सिस्टम्स है, लेट्स अज्यूम कि एक सिस्टम हमारे पास गिवन है, सिस्टम नंबर 1, और इसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आपको गिवन है कि y of t is equal to t into x of t। अब जो मैं आपको जो सिंपल जो रूल मैं बता रहा हूँ वो मैंने क्या बताया यहाँ पे, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर, कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है और हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये अनस्टेबल सिस्टम है, तो हमें क्या करना है, we just need to find one example जो कि इस सिस्टम को अनस्टेबल बना दे, which means find one specific bounded input for which output is unbounded। सो अनबाउंडेड अगर हमने अनस्टेबल सिस्टम, हमें लग रहा है कि कोई सिस्टम अनस्टेबल है, तो उसके केस में मुझे सिर्फ एक ऐसी एग्जांपल ढूंढनी है जिसमें ये वाला रूल जो है ओबे हो जाए कि आपका इनपुट बाउंडेड आपने अज्यूम किया लेकिन सिस्टम का आउटपुट जो है वो अनबाउंडेड हो गया। तो आपके ख्याल में ये जो मैंने एग्जांपल ली हुई है, इस केस में क्या होगा जी? कोई आप सिंपल कोई स्पेसिफिक इनपुट कंसीडर करके आप बता सकते हैं कि क्या इस सिस्टम का आउटपुट अनबाउंडेड हो सकता है? सर कोई नहीं है जी 1 क्या ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल है सर। स्टेबल सिस्टम है सर। स्टेबल सिस्टम है। अनस्टेबल है अनस्टेबल। अनस्टेबल है सर। क्यों अनस्टेबल है? सर अगर इसमें हम 1 दे सर तो बाउंडेड हमसे इनपुट अनबाउंडेड करेंगे वैल्यू तो आती है। अनबाउंडेड आउटपुट आएगा। यस, और वो Yes, आप sir. कौन सा ले रही हैं, कौन सा एक्स ऑफ टी को क्या ले रही हैं आप? सिंपल क्या ले रही हैं, U of एग्जांपल T। क्या ले रहे हैं? सर अगर 1 ले लेते इससे हमारे पास टी आ U into जाता है। T। यस, अगर मैं एक्स ऑफ टी को 1 ले लूं, मतलब इससे सिंपल कोई एग्जांपल मुझे मिल ही नहीं सकती। एक्स ऑफ टी इक्वल टू 1 क्या है? ये किस किस्म का इनपुट है? Bounded. ये तो बाउंडेड है। सर। आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट T. क्या हो गया? व्हाट इज द आउटपुट? अनबाउंडेड सर। आउटपुट इज Unbounded। अनबाउंडेड। तो ये सिस्टम जो है अनस्टेबल हो गया। नाउ कंसीडर अनदर सिस्टम।
सिस्टम नंबर 2 हमें गिवन है y of t is equal to e raised to power x of t, और इस सिस्टम के बारे में हमने बताना है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो अगर आप इसको अनस्टेबल सिस्टम आपको लग रहा है तो फिर आपने मुझे मतलब एक ऐसी सिंपल एग्जांपल आपने बतानी है कि इनपुट आपने बाउंडेड लिया और आउटपुट अनबाउंडेड आ जाए। कोई ऐसी एग्जांपल है आपके ख्याल में इसके लिए? जी सर जी अगर 1 ही लेंगे तो ई की वैल्यू जो है ना आगे जाती जाती है। अगर हम आप कह रहे हैं कि इसको मैं 1 ले लूं, यस यही कह रहे हैं ना? यस सर ई की वैल्यू जो है ना वो इरेशनल है, वो फिर आगे जाती जाएगी, टर्मिनेट नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो सर ये जाएगा। स्टेबल है सर, स्टेबल है सर। सर ये स्टेबल हो, स्टेबल होगा ये तो पक्का स्टेबल है। यस सर। जी। ये जो मैंने अनस्टेबल के लिए जो बताया कि कोई ऐसी स्पेसिफिक बाउंडेड इनपुट लें जिसके लिए आउटपुट अनबाउंडेड आ जाए, इस सिस्टम के लिए कोई ऐसी एग्जांपल है कि इनपुट बाउंडेड हो जाए और आउटपुट अनबाउंडेड हो जाए, जिसके बेस पे फिर हम नो कह दें कि सर ये अनस्टेबल है? जी नहीं, नहीं है। अगर ये नहीं है इसका मतलब है कि प्रोबेबली फिर ये कौन सा सिस्टम है? स्टेबल सिस्टम। स्टेबल है। लेकिन मैं इसको इस बेस पे नहीं कहूंगा कि बस ये अनस्टेबल है। मुझे क्या प्रूफ करना है कि फॉर एवरी पॉसिबल बाउंडेड इनपुट इन आउटपुट इज आल्सो बाउंडेड। ये मुझे मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि अगर मैं x ऑफ t को जब भी मैं इसको बाउंडेड इनपुट लूंगा आउटपुट भी बाउंडेड आए। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि मैं कंडीशन ले लेता हूं कि x ऑफ t, इसके मैग्नीट्यूड को मैं कह देता हूं कि ये x ऑफ t चाहे जिस किस्म का भी इनपुट है, व्हाट आई एम सेइंग इज इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक नंबर है जिसको मैं b कह रहा हूं उससे कम है। और b क्या है? b एक ऐसा नंबर है जो कि इन्फिनिटी से कम। तो इसका मतलब है कि मैंने क्या कंसीडर कर लिया, x ऑफ t क्या चीज है? x ऑफ t किस किस्म का इनपुट है? बाउंडेड। बाउंडेड। बाउंडेड इनपुट। इसका मतलब है कि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि x ऑफ t जो है इट इज अ नंबर दैट कैन वेरी फ्रॉम -b to +b। जब x ऑफ t की ये पोजीशन है तो अगर हम y ऑफ t की बात करें, y ऑफ t का मैग्नीट्यूड किस रेंज में वेरी करेगा? e raised to power -b and e raised to power +b. This is bounded number, this is bounded number, so output is also bounded and therefore system is stable.